Good morning, student. Today I am going to teach you English. These four student of class 5, chapter number 9, The Goddess and the King. हम इस चैप्टर को विस्तार से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम समझकर प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें. A king decided to build a unique place for himself. He sent his men to bring the biggest and strongest tree they could find. After a long search, they found one, but the king changed his decision. Why? Let's read and learn. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक राजा ने निर्णय लिया कि वो एक अनुपम अनोखा पैलेस बनाएंगे, राजमहल बनाएंगे. इसलिए उसने अपने आदमी को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पेड़ लाने के लिए बोला ताकि उसको काट कर लाया जाए. He could not find him. अब यह काट कर लाएगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लाने को कहा. लंबे सर्च करने के बाद लोगों ने एक पेड़ को पाया, उसे मिला जो राजा ने ऑर्डर दिया से उसके अनुसार वो था. परंतु राजा ने अपना निर्णय परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया. चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर उन्होंने अपना निर्णय क्यों परिवर्तित कर लिया. Long ago there lived a king in our country. Once he decided to build a palace for himself. बहुत पहले की बात है, एक राजा एक देश में रहते थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वो राजमहल बनाएंगे अपने लिए. He also decided that should be only a single column in the center of the palace which would support the entire building. उनका सोच भी अनोखा था. उनका कहना था कि पैलेस जो बनेगा सिर्फ बीच में ही एक पिलर होगा, बाकी और कहीं कुछ नहीं होगा. उसी के सहारे पूरा राजभवन होगा. He wanted that his palace should be more beautiful than any other palace in the country. वो चाहते थे उनका राजमहल दूसरे के राजमहल से सुंदर हो. The king called his chief minister and said, "Send men to our forest far and near. Ask them to cut down and bring to the city the biggest and the strongest tree they can find." अपने मुख्यमंत्री को बुलाकर उन्होंने कहा कि उनको नज़दीक या दूर जहां संभव हो वहां भेजो, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पेड़ काटकर मेरे लिए लाओ. The minister at once sent out some experienced woodcutters in search of the suitable trees. They toured the length and breadth of the kingdoms, but after many days they returned empty-handed. अब जो राजा का आदेश था कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई का पैलेस बनेगा, तो बहुत सारे लकड़हारा ने उसको नाप कर जब लकड़ी खोजने यानी पेड़ खोजने निकला तो खाली हाथ कई दिनों के बाद लौटकर वापस आया. When the king asked, the leader of the group said, "There are many strong and gigantic trees in the forest, but we could not carry or drag them all the way to the capital." उसने कहा कि जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं जो आप चाहते हैं, परंतु उसे हम यहाँ तक ला नहीं सकते. Very well, said the king. You must find a tree just as big near our capital. Bring it here within 7 days. इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो हमारे राजधानी के नज़दीक हो उस बड़े पेड़ को यहाँ 7 दिन के अंदर लाया जाए. The woodcutter left again and searched for a suitable tree. At last they saw a huge sal tree that grew not far from the palace. अब लकड़हारे को एक सूटेबल जो उनको चाहिए था योग्य पेड़ मिला जो साल का था और जो राजभवन था उससे नज़दीक में था. It was an unusual strong, large and beautiful tree and would easily serve their purpose. वो पेड़ सुंदर था, बड़ा था, जो चाहिए था वो था और उनके पर्पस को पूरा कर सकता था, उद्देश्य को पूरा कर सकता था. So woodcutters decided to cut down the tree. The people of the nearby villages worshipped the tree. They believed that within it lived the tree goddess. When they come to know that the woodcutters would cut the tree, they come with the garlands, lamps, hands. They worshipped the
trees goddess and then requested the woodcutters not to cut the trees. ग्रामीणों को जब पता चला कि ये बड़े पेड़ को काटने की तैयारी चल रही है तो वो सभी पूजा का सामान लेकर आए और पूजा करने लगे और रिक्वेस्ट किए लकड़हारे से कि कृपया इसे ना काटें, ये इस पर हम लोगों की देवी या देवता वास करते हैं। उन लोगों ने निवेदन करने लगे लकड़हारे से, कृपया इसे ना काटें, इस पर हमारी देवी देवता वास करते हैं। The woodcutters were rusting people. They believed that the local villagers had told them about the tree, but they were helpless. अब वो लोगों को समझाए कि आपके जो लोकल लोग हैं करते हैं, लेकिन हम लोग लाचार हैं। They offered their prayers to the tree goddess and begged her to leave the tree. Their leaders told that they would come after 7 days and cut down the trees. ग्रामीणों ने उस पेड़ पर विराजमान देवी से निवेदन किया कि वो अब इस पेड़ को छोड़ दें क्योंकि राजा के आदमी उसे काटेंगे, और उनसे कहा आप 7 दिन के बाद आकर इसे काटकर यहाँ से ले जाएंगे। द ट्री गॉडेस अंडरस्टूड दैट, माफ करें, द ट्री गॉडेस अंडरस्टूड व्हाट वाज द हैपेंड। शी रिमाइंड क्वाइट एज रस्टिंग ब्रिज फॉर द few moments, and then all her leaves began to whisper, sigh, sigh. Our fall will crush all the little sal trees and what is sprung and thrive under our protection. We do not care ourselves, but for the children's sake we will. The king had not ordered this. The tree goddess also became restless. It must not be allowed. I must visit the king and try to make him change his mind, he thought. That night, while the king was fast asleep, a shining figure appeared in his dream. It spoke to him in a very soft voice. O king, I am the goddess of sal tree. Your men have decided to cut me down, so I have come to you. Please stop them. No, I cannot do that, answered the king. Yours is the only tree nearest to the palace and strong enough to support the column for my new palace. Therefore, I must have it. O king, said the goddess, many birds and animals have built their nest in my branches. For thousands of years, the people of the surrounding villages have worshipped me. They come and sit under my cool shade to get rid of scorching sun. Please think of them and spare the tree. अब यहाँ तक पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि उसे जब निवेदन किया तो उस पेड़ पर जितने भी जीव जंतु रहते थे सभी परेशान हो गए। यहाँ तक कि जो गॉडेस थी, जो देवी थी, वो भी परेशान हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ किया जाए, तो वह राजा के पास स्वप्न में गई और उसे कहा कि तुमने जो डिसाइड किया है, तुम्हारा आदमी वहाँ गया है काटने के लिए, उसे रोक दो क्योंकि हमारे लिए यह उचित नहीं है। और वहाँ मैं वास करती हूँ, चिड़िया वास करते हैं, जीव जंतु हैं। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, वही सूटेबल है जो हमारे राज्य के नज़दीक है, इसलिए हम उसको काट कर यहाँ जरूर लाएंगे। I agreed, said the king. I agree to all these, the goddess of the trees, but I cannot spare you. I cannot change my mind. सब समझाने के बाद भी राजा ने कहा कि मैं सब कुछ मान रहा हूँ, परंतु मैं अपना निर्णय परिवर्तित करने नहीं जा रहा हूँ। The tree goddess remained silent for some time. At last she spoke again with a deep voice. Then, O mighty king, do me no favor. Please fail me in 3 parts. First, cut away the green part. Next, cut the middle with its 100 strong arms and the hands. At last of all, cut down my trunk. अंत कुछ समय तक इंतजार करके उसने कहा कि जितने मेरे हरे भाग हैं पहले उसको काटो, फिर मेरे ब्रांच जो शाखा है, डाली है, उसको काटो, लास्ट में मेरे पेड़ को काटोगे, तना को काटोगे।
What a strange request, said the king. I have never heard of anyone who wishes to suffer 3 times. ये किस तरह का आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने अभी तक कभी नहीं सुना है. My family had grown around me. Dozens of young sal trees have sprung around me. They depend on me for shade and shelter. If you cut me with one mighty stalk, my weight would certainly crush all my children to the death. But if you suffer the stalk 3 times and fall in 3 pieces, some of them little one might escape. उन्होंने तर्क दिया कि अगर तुम मुझे पूरे काट दोगे तो मेरा भार जो होगा इससे बहुत सारे साल के पेड़ जो अगल बगल में हमारी छत्र छाया में पल रहा है वो मर जाएगा. अगर तुम बारी बारी से काटोगे तो उसमें से कुछ हो सकता है बच जाए. द किंग रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट ए ग्रेट सैक्रिफाइस ही थॉट. बोले वाह, कितना बलिदान दे रहे हैं, कितना बड़ा त्याग दे रहे हैं. डू यू ग्रांट माई प्रेयर, द ट्री गॉडेस आस्क्ड. देवी ने पूछा, क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? यस आई डू, सेड द किंग. हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा. थैंक यू ओ किंग, सेड द किंग गॉडेस, एंड स्लोली द फिगर फेड अवे. धन्यवाद देकर वो वहाँ से विलुप्त हो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर्स एंड लीडर ऑफ द वुड कटर्स. आई हैव चेंज माई माइंड, ही सेड. द कॉलम फॉर द न्यू प्लेस शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट ऑफ वुड. अगले दिन वुड कटर जो लकड़हारा था उसके मेन आदमी को बुलाकर कहा कि मैंने प्लान चेंज कर दिया है. अब जो पिलर होगा वो लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर का होगा. बट वाई डिड यू चेंज योर डिसीजन, दे आस्क्ड सरप्राइज. उन लोगों ने पूछा, इतना परेशान हम लोगों को किए और आप निर्णय चेंज कर रहे हैं. बिकॉज ए वेरी नोबल गॉडेस लिव इन द ट्रीज, ही सेड. देन ही टोल्ड देम ऑफ हिज ड्रीम. उसने बताया उसमें बहुत अच्छी गॉडेस रहती हैं, देवी रहती हैं, और पूरी कहानी उन लोगों को बता दिया. कहानी का तात्पर्य यही है कि जब आप दूसरे के लिए जीते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा होता है. दूसरा संदेश यह है कि आपको वैसे लोगों पर दया करना चाहिए जो दूसरे के लिए हमेशा अच्छा काम कर रहे होते हैं. जिस तरह राजा ने डिसीजन लिया, परंतु जब देवी ने बताया तो राजा ने मान लिया कि इतना बड़ा बलिदान कोई और नहीं दे सकता है, तो अपना प्लान चेंज कर दिया. तो इसमें कई एक मैसेज हैं. इस मैसेज को बारीकी से पढ़िए, समझिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए. आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे. इसका डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, फ्रेम सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.